So next topic is relation between current and drift velocity. Current and drift velocity. Let us take a conductor having length L and area is A. Area is A. So as we know, direction of electric field is positive to negative. Electron will start drifting in towards positive. यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. पर हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है? दैट इज एरिया इनटू लेंथ. सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे नंबर डेंसिटी का केस. नंबर डेंसिटी का केस दैट इज स्मॉल एन एंड स्मॉल एन इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दैट इज कैपिटल एन बाय वी, वेयर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Because as we know, the total charge acquired of an object is the integral multiple of the basic unit of charge. हमने first chapter में पढ़ा that is quantization of charge and it is given by Q is equal to capital N E. तो capital N की वैल्यू क्या है? यहां से दिखना small n into volume, volume की वैल्यू small n into area into length. तो Q की वैल्यू क्या आ गई इस फॉर्मूला से? NaLe, where E is the basic unit of charge. But as we know, current का फॉर्मूला दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम एंड इट इज गिवन बाय NaLe by T. एंड व्हाट इज लेंथ ओवर टाइम? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी NaVd into E. तो करंट का रिलेशन क्या है हमारे पास में? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज I इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही हमारे पास में क्या होने वाला है? करंट होने वाला है. So next topic is Ohm's law. What is Ohm's law? ठीक है, आप सिंपली छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं. Ohm's law क्या होता है? Ohm's law is simply the net potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. That is, V is directly proportional to I, which means potential difference directly proportional to current. जब भी proportionality constant को हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? एक constant आता है, that is R, where R is our resistance. R is equal to V by A, and here is a graph between potential difference and current, which is a straight line. Now, deduction of Ohm's law. Deduction of Ohm's law means derivation of Ohm's law. हम यहाँ पे हमने छोटी क्लास में तो ये फॉर्मूला पढ़ा, पर लेकिन हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? उसको डिराइव करने वाले हैं. So it is given by, as we know, drift velocity is given by E tau by m. E tau by m. बट हमने क्या किया था? सेकंड चैप्टर में रिलेशन बिटवीन पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, which is given by potential over its length. तो देखना E is equal to V by L की वैल्यू यहां पे रखते हैं. रखा तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास में. सो एज वी नो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NeAVd, जो अपने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में हमने किया. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहां पे वैल्यू रखना, दैट इज NE2AV tau over ml, where V is potential and Vd is drift velocity. तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे. देखना, तो जब सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं, हमें तो सिर्फ V और I चाहिए, तो ये चीज बचती है, दैट इज ml over NE2A tau, एंड इट इज अ कांस्टेंट. एंड कांस्टेंट क्यों होगा? बिकॉज मास इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, एंड इज नंबर डेंसिटी विच इज आल्सो कांस्टेंट. E2 दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट, एरिया इज आल्सो कांस्टेंट, टाइम इज आल्सो. तो पूरी टर्म क्या है हमारे पास में? Constant. That's why उसको हमने लिख दिया R, where R is resistance and it is given by V over I, and hence prove that is V is equal to Ri. So what is resistance? Here factors affecting resistance. Resistance is directly proportional to its length. Resistance is inversely proportional to area, and it is given R is directly L by A. तो जब क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है, दैट इज resistivity, which is symbol of rho. R is equal to rho L by A. So where rho is resistivity and unit of resistance is ohm. So next topic is temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity is given by, that is alpha. Alpha is rho minus rho naught over rho naught, bracket में T minus T naught. So what is rho? Rho is simply the resistivity and rho naught is the resistivity at time t naught, यानी कि initial resistivity, and rho and capital T is given by, rho is resistivity after time t, and in the terms of अगर हम resistance में लिखें तो alpha is equal to R minus R naught is given by R naught T minus T naught. Next topic is electron mobility. Electron mobility. It is the
speed of electrons, yeah, it is a drift speed of electrons which acquired by the electrons when placing in the electric field. यानी कि वो स्पीड होती है, वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो वो अक्वायर करते हैं, जब उनको कहां पे प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में. दैट इज म्यू इज गिवन बाय वीडी ओवर ई. एज वी नो वीडी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज ई टाउ बाय एम. ई से ई गया तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, दैट इज ई टाउ बाय एम, वेयर ई इज basic unit of charge, tau is relaxation time and m is mass of electron. Now यहां तक तो ठीक था. फिर अब हमारे पास में आए डिसएडवांटेजेस ऑफ ओम्स लॉ कह सकते हो, या कहते हो फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ. देखो लॉ तो क्या होता है, यूनिवर्सल होना चाहिए, पर लेकिन ये तो क्या हो गया, फेल हो गया. यानी कि हमारे पास में दो टाइप के मटेरियल आते हैं, वन इज ओमिक मटेरियल एंड सेकेंड इज नॉन ओमिक मटेरियल. यानी कि ओमिक मटेरियल तो वो होते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और नॉन ओमिक मटेरियल क्या होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दैट आर सेमीकंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. एक केस आता है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है. तो हमें पता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर की. तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की. यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी क्या करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी. बट लेकिन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इन तीनों केसेस में डिफरेंट है. सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ. केवल ओम्स लॉ को हम कहां कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशंस. फर्स्ट इज टंगस्टन. यू ऑल आर वेरी वेरी अवेयर व्हाट इज टंगस्टन. इट इज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब. यानी कि फिलामेंट ऑफ बल्ब किससे बनता है हमारे पास में, दैट इज टंगस्टन. सेकेंड इज हमारे पास में नाइक्रोम. नाइक्रोम में भी क्या होती है कि हमारी ओम्स लॉ की एप्लीकेशन यूज होती है, ओम्स लॉ यूज होता है. कंटेस्टेंट एंड मैग्नीन. नाइक्रोम और कंटेस्टेंट एंड मैग्नीन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स. नेक्स्ट इज टिन लेड एलॉय. एंड लास्ट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम. कॉपर एंड एल्यूमिनियम तो हमारे पास वायर्स होती हैं. सो हियर आर द सम एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ. So the next topic is electromotive force. Next topic is electromotive force. What is electromotive force? It is a work done to move a charge from low potential to high potential. It is a work done to move a charge from low potential to high potential. And its symbol is given by capital this type of. So internal resistance. Internal resistance, it is the resistance offered by a EMF of a cell. यानी कि छोटा सा एक बिल्कुल लिटिल अमाउंट में हमारे पास रेजिस्टेंस होगा जो ऑफर कौन कर रहा है, EMF, एंड इट इज गिवन बाय स्मॉल r. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF ऑफ अ सेल. टर्मिनल पोटेंशियल यानी इसके अलाउंग जो टर्मिनल पोटेंशियल हम निकालने वाले हैं वो. तो टर्मिनल पोटेंशियल देखना क्या होता है कि दो केसेस आएंगे, एक आएगा ओपन सर्किट और एक आएगा क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट मींस जब भी हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है इधर, और क्लोज सर्किट मींस करंट का फ्लो हो रहा है. जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमारे पास में डायरेक्ट होता है E इज इक्वल टू V. यानी कि EMF ऑफ ए सेल इक्वल होता है हमारे पास में पोटेंशियल ऑफ अ सेल. एंड ग्राफ बिटवीन EMF एंड R इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कांस्टेंट. नाउ सेकेंड केस इज इन क्लोज सर्किट. यानी कि इन क्लोज सर्किट जैसे ही हमने क्या किया, सर्किट की की को ऑन किया, हमारे पास में देखना दो टाइप के हमारे पोटेंशियल आ रहे हैं. एक तो करंट तो सेम ही जा रहा है, दैट इज एक तो इस रेजिस्टेंस की वजह से एक स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू R IR प्लस स्मॉल I इंटू स्मॉल r, एंड इट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू IR इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, V दैट इज पोटेंशियल, V प्लस IR. एंड दिस इज द केस ऑफ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. जब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं. एंड ड्यूरिंग क्या होता है, चार्जिंग में दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E प्लस IR, और डिस्चार्जिंग में क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो व्हाट अबाउट दी करंट. करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, I इज इक्वल टू R प्लस R. तो यहाँ पे I इज इक्वल टू E बाय स्मॉल R प्लस स्मॉल r. And the graph between EMF and resistance of this circuit is given by this, where this is the point of R is equal to small r, and it is this time. So that's all for our today's class, and thank you and have a nice day, dear students.